all of you recite the dua. Yasir wala to asir wa tamam khairu min as-sa'id ya fatam ya fatam. We will do question number 14, okay? And we will move to the next exercise today, inshallah. So in question number 14, what is given? We have in a school of 1200 students, the ratio of the number of teachers to students is 1 is to 15. So but this ratio tells us that there is one teacher for 15 students. Okay, one teacher for 15 students. जी सर क्लास हो रही है मैं कंप्यूटर लैब में हूँ अस्सलाम वालेकुम बॉयज ओके क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 14 so the ratio tells us one teacher for 15 students okay now what the question is after some teachers join the school the ratio of the number of teachers to students becomes 3 to 40 which टीचर्स के ज्वाइन करने पर रेशियो चेंज हो जाता है 3:40 पर The first question is the initial number of teachers in the school. To find the initial number of students in the school. तो हम इसके लिए क्या करेंगे हम सबसे पहले हम देखेंगे टीचर्स टू स्टूडेंट्स रेशियो इज 1:15. So now we know the students are 1200 so we write T is to 1200 is equal to 1:15. Now we have to find T right in form of fractions. T over 1200 is equal to 1 over 15. The 1200 is in the denominator here. When it goes to the right hand side, so it will go in numerator. So T is equal to 1 multiply 1200 divided by 15. Now it is equal to 1200 over 15. So 5 3s are 15 and 5 2s are 10, 5 4s are 20, 0 will come. And 3 1 is 3 and 3 8s are 24, 80. So there are 80 teachers in the school initially. This is our answer.
If you have any question, you can raise your hand. Yes, I am allowing some of you to unmute. Okay. If you keep your mics turned, keep your mics turned off. Okay. If you have any question, you can unmute yourself. Now we are doing question number 2, the second part of this question. So look here. Initially, there were 80 teachers, and some teachers joined the school. So if we write the sum teachers who joins the school is equal to 80 plus x. X is the number of teachers, and the students are same 1200. So the ratio become 3 is to 40. 3 is to 40. Ratio changed. Okay. Then some teachers add. Okay. Some teachers join the school. Okay. So the ratio changed students to teacher. So how we will solve it? Same pattern we will solve it. सर पार्ट 1 का नीचे वाला सर आपकी आवाज मेरी आवाज नहीं आ रही? मेरी आवाज आ रही है भाई, बिल्कुल सही चल रहा है हमारा आ रही है नेट। बहुत कट कट के आ रही है। तो अब आप मेरा ही फिर नहीं चल सॉल्यूशन को रहा देखो है। आप। ओके, नाउ 80 प्लस x इज इक्वल टू सर 3, पार्ट 1 का सबसे नीचे वाला जो आपने 1200 वो दिखा दें। 1200 will go on the right hand side to multiply with 3, 200, and there is already 40 in the denominator. So we can divide it 0, 0, 0, and 4, 1 is 4, 4, 3 are 12, so 30 is there. So where 30 multiplied 3 is equal to 90, and this 80 will go on the right hand side. So 90 minus 80 is equal to 10. So 10 teachers joined. 10. How many teachers joined the school? 10 teachers joined the school. Clear है ये बात? Yes. Now we are moving next. सर एक चीज पूछनी थी जी बेटा बोले। सर, ये बोले। जैसे आपने जो 3 मल्टीप्लाई बाय 30 ये 90 नहीं दिखाया, से हम छोटे छोटे स्टेप्स तो छोड़ सकते हैं ना? हाँ हाँ छोड़ सकते हैं, अच्छा नहीं। Now we have the next topic is rate. Okay, how we can find rate? You can see here. Ratio जो होता है, ratio is the comparison of two or more quantities of same kind. ठीक है, रेशियो में सेम काइंड ऑफ क्वांटिटीज होती हैं और उनकी यूनिट्स भी सेम होती हैं। ठीक है, जैसे कि नंबर ऑफ बॉयज टू गर्ल्स 3:1, ये 3 बॉयज हैं, 1 गर्ल है। इसी तरह से रेट जो होता है, रेट किसी भी क्वांटिटी की चेंज को बता रहा होता है कि रेट टेल्स अस हाउ वन क्वांटिटी चेंजेस विद अनदर, लाइक 40 kilometers per hour is a rate. Okay, typing speed like 40 words per minute, this is a rate. Okay, and like this speaking rate for example 175 words in 1 minute. Okay, so rate involves two different quantities, relationship of two different quantities. Okay, have how many quantity of one is according to the second quantity in comparison of second quantity.
Now ratio and rate can be similar if the units are same. अगर सेम टाइप्स ऑफ चीज होंगी तो रेशियो और रेट सिमिलर हो सकते हैं. सर अब हम समझ में नहीं आया, वापसी समझ सकते हैं? अच्छा मैं समझाता हूँ. देखिए जैसे कि एक चीज है, फॉर एग्जाम्पल एक चाय की पत्ती जैसी टी लो, ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल 200 ग्राम, ठीक है, पर डॉलर, या 200 ग्राम्स पर 250, जैसे इसमें यहाँ दिया हुआ है ना, देखें ये देखें इसमें दिया हुआ है ये एक कॉफी है, ठीक है, कॉफी है वो 800 ग्राम्स, 200 ग्राम्स कॉफी पाउडर है $5.8 का, और 200 प्लस 50 ग्राम है कॉफी पाउडर 7.45 का. अब इसने यही पूछा है कि कौन सी चीज ज्यादा सस्ती पड़ेगी. तो उसको क्या करेंगे, उसको डिवाइड करके चेक करेंगे, रेट निकालेंगे कि इसके अंदर हमें 1 ग्राम कॉफी कितने की पड़ रही है. सही है. तो फिर क्या हो जाएगा, ये डॉलर्स पर ग्राम आ जाएगा. जब हम इसको डिवाइड करेंगे 5.0 को 200 से, सो वी विल गेट द रेट ऑफ 1 ग्राम. ठीक है. फिर इसी तरह से यहाँ पर हम करेंगे 1 ग्राम को, तो हमारे पास आ जाएगा डॉलर पर ग्राम. तो दिस इज रेट. रेट जो हम ये निकाल लेना, एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी डिवाइड करके, दिस इज रेट. सो नाउ ये इसके बाद वो प्लग भी है, मल्टीप्लग. नाउ look here, a rate is a way of comparing how one quantity changes with another quantity. The two quantities can be of the same kind or different kinds. ठीक है. A rate that compares two quantities of the same kind can be converted to ratio. जो सेम टाइप ऑफ क्वांटिटीज होती हैं वो रेशियो भी हो सकती हैं, जबकि वो 1 के हिसाब से हो. और we use rate when comparing how one quantity changes with another quantity. Otherwise, we use ratio. A rate can be expressed as the number of units of one quantity per n units of another quantity. There n is the positive integer. अब आ जाए क्वेश्चन पर. क्लियरली आपको समझ आ जाएगा बिल्कुल. क्वेश्चन नंबर हम ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1A. दिस इज क्वेश्चन नंबर 1A, एक्सरसाइज 9B. It's an easy topic, no problem. So a typist types 1800 words in 1 hour. Find the number of words that she can type per minute. Now understand that what we have to find here. We have to find the number of words per minute. We have to find the number of words per minute. Okay. So we have to find words per minute. So we will divide number of words in the second quantity must be in minutes. So hours can be changed with minutes. So we will get 6 1 is 6, 6 3s are 18. तो क्या आ गया यहाँ पे 30/1 आ गया ना. इट मीन्स कि 30 words in 1 minute. So we write it like this: 30 words per. For 1 we write an oblique sign per minute. Clear? Same types of question are these three, Okay. all of these parts. So I think Can you show do that? this in homework. Yes. What time is it? It's 12:26. So we have 10 minutes. Can you show that? 8 minutes. 8. Now we are moving to the next part. So the next सर part अभी वो वाला is, क्वेश्चन next part कौन बताएगा क्या करना पड़ेगा इसमें? Yes.
जी बेटा, में सॉल्यूशन में। एक यूनिट वेरी गुड, हमें बताना है कि हम एक यूनिट, यानी कि यहाँ पे 1 एक यूनिट हो यूनिट जाए, कितने डॉलर? यूनिट डिवाइड में आ जाएगा, सही है। और क्या मालूम करनी है? कॉस्ट, कॉस्ट पर यूनिट। सो व्हाट वी विल डू, वी विल राइट 120.99 dollars divided by 654. So we will get, when we do it in the calculator, so we will get, look here, 120.99 divided by 654 equal to 0.185. So we get here 0.185. So we write $0.185. Okay, dollars. We can write like this, per minute or in 1 minute. According to the question, we can write in 1 minute. Simple question, no problem. Everybody is getting the concept and method to solve the question. Yes. So who can tell me the answer of part C? A man pays a total of $4,800 for flat rental in 3 months. Find his monthly rental rate. Yes. Who is telling the answer here? How we can solve it? What number we will divide by which number? So what we have to find is monthly rental, means month will come in the denominator, and what will come in the numerator? Rent. Rent in dollars. So what is the rent? 4,800. Yes. Everybody is allowed to 4,800. unmute. Everybody is allowed to unmute. Is there any restriction? Okay, sir. Allow. No. Everybody can allow, can unmute. Okay, sir. So इतने सारे बच्चे हैं यहाँ पे मुनीब के अलावा, वो बताएं बेटा कि किससे डिवाइड करना पड़ेगा? यस, वी हैव Month मोहित। से 90 days. 90 डेज नहीं ना, हमें 1 मंथ चाहिए, मंथली चाहिए। 30 से 30 से भाई, उर्दू में समझो इसको, 4,800 किराया है, ठीक है, 3 महीने का। तो 1 महीने के लिए किससे डिवाइड करना होगा? 3 महीने का किराया 4,800 3 से जी से होगा ना। इतने सारे बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ पे, पता नहीं क्या कर रहे हैं। उमर खान है, उमर फारूक है, उनैस है। तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 is 3 and 3 16 the 48, तो $1,600 आ जाएगा, ठीक है। मंथली, मंथली लिखते हैं या पर मंथ लिखते हैं? नाउ द लास्ट पार्ट। जी कौन बताएगा इसका? बताएं चले, क्या है क्वेश्चन और क्या है सर थोड़ा आंसर? वेट कर ले। बोले बिलाल बताए चले। सब लोग किसी और काम में तो नहीं लगे हुए? क्योंकि आपकी ना हमें शक्ल नजर आ रही है, मोबाइल से ना पता चल रहा है क्या क्या कर रहे हैं। पर फारूक बताएंगे आप ये क्या है क्वेश्चन और क्या करना हो, कैसे होगा ये? अच्छा जी, सिस्टर तोहा, ये तोहा राजपूत है शायद, बताएंगे तोहा जी। हेडफोन लगाए तो टोपी लगाना मुश्किल होती है। जी आप तो जरा वीडियोज ऑन करें, पता चले आपको कहाँ बैठे हैं, घर में हैं, बिस्तर में हैं, लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं, किस पोजीशन में आप लोग क्लास ले रहे हैं। अच्छा मुनीब नजर आ रहा है मुझको, अहमद, अहमद तो लेटे हुए हैं। और कौन कौन है? तोहा की तो आवाज भी नहीं आ रही, शायद ऑनलाइन उनके चले गए कहीं इधर उधर। मोबाइल देख रहे थे। क्या हम मोबाइल देख रहे हैं? तो बस खान बैठे हैं तो बच्चे से ऐसे ही
जी कोई नहीं बता सकते इसका आंसर? क्या मैं कुछ बताऊं? क्वेश्चन है? जी उमर खान बताएं। बताएं उमर। क्वेश्चन डी पढ़ो उमर, बताओ क्या क्वेश्चन है, क्या करना है? एक मेटल बार का मास दिया हुआ है, ठीक है, उसकी लेंथ दी हुई है, उसका मास दिया हुआ है। दूसरा है कि फाइंड इट मास पर मिनट। मालूम क्या करना है? मास पर, जी मुनीब बताएं, आप ही बताएं कौन को क्या करना पड़ेगा? मास और नीचे क्या लिखना पड़ेगा? ऊपर मास आएगा, नीचे उसको मीटर आएगा। मीटर। मीटर आएगा। और अब अभी क्या किलो करेंगे? के साथ डिवाइड कर दूंगा। यानी कि थ्री पॉइंट टू 15 केजी फाइव ऊपर नीचे। कौन बोल रहे हैं? नहीं सर, ऊपर 15 केजी आएगा। अच्छा ये गलत लिख दिया मैंने। ओके। यस। तो 15 ऊपर लिखना पड़ेगा। 15 डिवाइड बाई 3.5। अच्छा इसमें यूनिट चेंज करने की जरूरत है? जी कौन बताएगा? अली। अली यस भी है सर। यहाँ पर। यूनिट चेंज करनी पड़ेगी क्या? उससे कोई नो सर। जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने कोई ऐसा नहीं पूछा कि मीटर है तो मीटर में ही पूछा है, और मास जो है वो किलोग्राम में, तो मास में भी कोई ऐसे वो नहीं है। तो वी विल जस्ट डिवाइड इट, ओके। तो 15 डिवाइड बाई, जब इसको डेसिमल खत्म करेंगे तो हमें 1500 आ जाएगा, और फिर नीचे 325 आ जाएगा। आप किससे डिवाइड कर सकते हैं बताएं? जी पार्टिसिपेशन कम हो रही है ठीक। बच्चों की। फर्स्ट से फर्स्ट। 5 से कर 5 से लें सर। तो 5 6 आर 30, फिर 2 बचा, 5025। जी उनैस बताएंगे इसके बाद यहाँ पे कैसे होगा? जी जफरुद्दीन भी ऊपर हमारे पास, 500। मुसब है, सुभान है, उस्मान है। सर 5 3 15। उस्मान है? नहीं आज। जी 5 3 ऊपर आर 250 15। रखना। 5 3 आर और 3 15, से 300। जी नेक्स्ट कौन बताएगा? सर ये भी 5 से कर दें। उमर फारूक। 5 से करते यस हैं। सर। किससे डिवाइड होगा बताओ? 5 से क्या क्या आएगा आंसर यहाँ पे? 5 से 65 को डिवाइड करेंगे तो सर 13। 5 13 65, और ऊपर याद आएगा 60। 5 6 60। तो 60 ओवर 5 6। 30। इसको फिर डेसिमल में करना पड़ेगा, तो इतनी तो आपको डिवीजन आती होगी। तो 13 फोर सा क्या होता है? 52। 3। और 10 - 8, 2 - 8 आ गया। फिर डेसिमल लगाओगे। अच्छा जी डेसिमल लगाने 18। के बाद 80 80 हो हो जाएगा जाएगा। सर। और 13 6 78, ठीक है। 78। बस ये 2 बचा, और फिर आगे अगर एक और करना चाहते हैं तो 13 बनता हो जाएगा। तो 13 आंसर आ बन रहा जा। है इसका 13। आंसर हमारा आ रहा है 4.71 किलोग्राम पर मीटर। ये है हमारा रेट का 30। टॉपिक। 30। सही है ना? 4.71 किलोग्राम। ये 4 सवाल हो गए हमारे। हो गया। और यस। क्लास का टाइम जो हो रहा है, मैं इसका क्वेश्चन आप लोग को जो होमवर्क में दे रहा हूँ मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, वो आप लोग कैसे करोगे। ये सर ऊपर जो क्लास भी क्वेश्चन। ओवर हो गई। जी बेटा आप फिलहाल जागते हैं, क्लास कब ओवर हो रही है और कब ऑन हो रही है, बस ये बताते हैं हमें आके क्लास ओवर कब होगी। ये आज क्वेश्चन आप लोगों ने 11। होमवर्क में करना है। ये वाला बेटा, ये एक एग्जाम्पल भी है, एग्जाम्पल नंबर 9। और ये क्वेश्चन आपने करना है, ये लीड थिंग वाला, कि इसमें कंपैरिजन करना है कि कौन जो है वो फास्टेस्ट टाइपिस्ट है, ठीक है। तो तीनों को डिवाइड करके आप लोग निकालेंगे आंसर, जिसके वर्ड ज्यादा आ रहे होंगे पर मिनट, वही फास्टेस्ट टाइपिस्ट होगा। तो आई एम सेंडिंग दिस इन योर व्हाट्सएप ग्रुप आफ्टर द क्लास। टिल दैट, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यस। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला